हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन और मैंने जो है ना क्लास 11th के चैप्टर सेकंड के एमसीक्यूज बनाए हैं और ये एमसीक्यूज 300 से भी ऊपर है और मैंने कोशिश की है हर एक लाइन से एक एमसीक्यूज निकालने की। तो आप मेरे साथ में इन एमसीक्यूज को करो और अपनी नॉलेज को टेस्ट करो, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर्स। बिजनेस की कौन सी फॉर्म में जो एंटरप्राइज की आइडेंटिटी है वो डिफरेंट होती है ओनर की आइडेंटिटी से। तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्पोरेट फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसके बारे में कौन सी बात सच है। इट इज ओन्ड बाय मल्टीपल इंडिविजुअल्स। द लाइबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड। The business has a separate legal entity. The owner bears all the risks and receive all the profits. Answer is D. The owner bears all the risks and receives all the profits. What is the key feature of a sole proprietorship regarding decision making? Decisions are made by a board of directors. Decisions require approval from shareholders. The sole proprietor has full power for decision making. So answer C is correct. In which type of business organization are there no legal formalities required to start, manage or dissolve the business? Corporation, partnership, sole proprietorship, limited liability company. So answer is a sole proprietorship. Why is a sole proprietorship suitable for personalized services and small scale activities? It requires a large amount of capital. It involves complex legal formalities. It is managed by multiple owners. It allows for direct control and flexibility by the owner. It allows for direct control and flexibility by the owner. Which of the following statements is incorrect about sole proprietorship? It has a separate legal entity from its owner. The owner has unlimited liability. It is easy to start and dissolve. तो इसका आंसर है it has a separate legal entity from its owner. Which feature of a sole proprietorship allows it to start and close easily? So answer is C. No legal formalities. Why can a sole proprietorship make quick decisions? The sole trader does not have to inform or consult anyone about his decisions. ठीक है. Which of the following is not a limitation of a sole proprietorship? सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन नहीं है. लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो इसकी लिमिटेशन नहीं है क्विक डिसीजन मेकिंग. ठीक है. व्हाट इज द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप? द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे बिजनेस डेट्स. Which of the following is the benefit of being the sole risk bearer and profit recipient in a sole proprietorship? Limited financial resources, quick decision making, sense of personal satisfaction and accomplishment. So answer is sense of personal satisfaction and accomplishments. What limitation does the sole trader face in terms of financial resources? sole trader जो है financial resources के terms में कौन सी limitations face करता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग कैपेसिटी. इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, क्विक डिसीजन मेकिंग. तो आंसर इज लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग कैपेसिटी. व्हाई माइट अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैव लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन? लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल्स. व्हाट कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप? क्विक डिसीजन मेकिंग, डेथ, इंसॉल्वेंसी, lunacy or illness of the proprietor, sense of accomplishment. Death, insolvency, lunacy or illness of the proprietor. Sole tradership is suitable for which of the following businesses? Businesses requiring personal attention to customers, large scale manufacturing, high risk investment, international trade. So businesses requiring personal attention to customers. Which type of goods are best suited for a sole tradership? Standardized, unstandardized goods like artistic jewelry, mass-produced electronics, commodities like oil and gas.
So answer is B, unstandardized goods like artistic jewelry. Sole tradership is ideal when extensive managerial skills are required, high capital investment, risk is intensive, modest capital and limited managerial skills are required. The answer D is correct. Which of the following businesses is least suitable for a sole tradership? Tailoring, beauty parlor, retail, high frequency trading firm. तो answer D. Who manages as joint to Hindu family business? Hindu family business को कौन manage करता है? All family members jointly, eldest member of the family. So answer B is correct. And eldest family member of the family known as Karta. Which system allows both male female members to be co-partners in a joint Hindu family business? तो ये कौन सा सिस्टम है? तो ये मिताक्षरा सिस्टम है या दयाभाग सिस्टम है? तो ये दयाभाग सिस्टम होता है. What is the liability of the कर्ता in a joint family business? जो उसकी liability होती है कर्ता की, liability is limited to their share in the property, unlimited liability, limited liability या फिर no liability. तो ये जाएगा unlimited liability. How is membership in joint Hindu family business determined? Membership कैसे मिलती है उसमें? By election, inheritance of ancestral property, by purchase of shares, by appointment from the government. तो answer B is correct. What happens to the joint Hindu family business if Karta dies? Business dissolves, business continues under the next senior male member. Government takes over the business, business is sold. So answer B is correct. Business continues under the next senior male member. Which of the following is a merit of joint Hindu family business? Limited liability of for करता, अभी हमने देखा था कि उसकी unlimited liability होती है. Effective control by a board of directors, continued business existence despite changes in leadership. इसकी मेरिट बतानी है. मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस. तो आंसर डी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती. कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस डिस्पाइट चेंजेस इन लीडरशिप. तो आंसर सी इज करेक्ट क्योंकि अगर कर्ता मर भी जाए तो उसके बाद में इनहेरिटेंस जो उसके मेल मेंबर हायर होगा उसको मिल जाती है. What kind of liability do the members other than the कर्ता have in a joint Hindu family business? किस तरीके की liability होती है कर्ता के अलावा जो मेंबर होते हैं, ठीक है, joint Hindu family business में उनकी liability किस तरीके की होती है? वो अनलिमिटेड होती है या फिर नो लाइबिलिटी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी, जॉइंट लाइबिलिटी विद द कर्ता. तो ये होगा लिमिटेड लाइबिलिटी टू देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी. Which feature of joint Hindu family business ensures a secrecy in business decisions? तो joint Hindu family business का जो कौन सा फीचर है जिससे की वजह से सीक्रेसी बनी रहती है बिजनेस के? मेंबरशिप बाय बर्थ, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कर्ता, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन. तो आंसर डी तो नहीं हो सकता, ठीक है. अब सीक्रेसी की बात हो रही है तो उसका मेंबरशिप से क्या लेना देना, तो ए भी नहीं है. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अब सीक्रेसी की बात हो रही है तो लाइबिलिटी भी क्लोज नहीं होगा. एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि वो जो करता होता है उसी के बाद में एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इसीलिए जो है वो अपने डिसीजन अपने तक रख सकता है, ठीक है. व्हाट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होता है? बैंक लोन, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो ये होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशन क्या है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की? नहीं, अनलिमिटेड होती है, हमने ऊपर देखा. अब एम्पल मैनेजर स्किल्स ऑफ कर्ता, ठीक है. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, तो आंसर सी. लिमिटेशन है ये कि कर्ता की जो है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. What potential issue can arise due to the dominance of the कर्ता in a joint Hindu family? तो efficient management आएगा, ignoring valuable advice from other members. तो आंसर B is correct. Why might the कर्ता of a joint Hindu family business make hasty decisions? वो जल्दबाजी में जो है कर्ता डिसीजन क्यों ले सकता है? Due to limited liability, because of extensive consultation with other members, because he is overburdened with work.
अब देखो उसके ऊपर लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, तो आंसर ए करेक्ट। ए जो है वो गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। अब वो जो है सारे डिसीजन खुद लेता है, उसके पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग पावर की टर्म्स में, ठीक है। तो बी भी करेक्ट, बी भी जो है हमारा वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ही इज ओवर बर्डन विद वर्क, इसीलिए वो जो है जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ड्यू टू हाई मैनेजरल स्किल्स, अब क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है काम, उसकी जो मैनेजरल स्किल्स होती है वो जनरली या तो मीडियम होती है, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स ऑफ द कर्ता इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ, अब जो उसके बाद में जो लिमिटेड मैनेजर स्किल्स की जो लिमिटेड पावर्स होती है ना, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होती है कर्ता के पास में, उसके का कॉज क्या है, उसका क्या कारण है? क्योंकि एक्सेसिव डेलीगेशन होती है उसके ऊपर ड्यूटीज की, या फिर बिजनेस फ्लरिश करता रहता है बिना चैलेंजेस के, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बी तो नहीं हो सकता इसका। इट पोजेज अ सीरियस प्रॉब्लम टू बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस को ये काफी सीरियस प्रॉब्लम्स देते हैं। देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, वो होता है कि जैसे कोई किराने की दुकान है तो उसको भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा, अब उनको कोई ऐसी बिजनेस ऑपरेशन में कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम तो आती नहीं है, बिजनेस जनरली जो है एक्सपेंड करता है रैपिडली, तो ये भी नहीं हो सकता। बट आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि उनके पास में लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स होती है, इसीलिए एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह होता है ये, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेसेस? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज, कि जो जॉइंट फैमिलीज है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज, इनहेंस्ड मैनेजरल स्किल्स ऑफ करता। तो आंसर सी, आंसर सी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। Which limitation of the joint Hindu family business could lead to conflicts among members? Dominance of Karta. The unlimited liability of the Karta can make him more enterprising, less enterprising, indifferent to risks, more willing to take bold decisions, less enterprising. Unlimited liability. जो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, उसकी वजह से वो क्या बन सकता है? तो वो कम मेहनती बन सकता है। ये हमने जो है बुक में लिखा हुआ था एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। अगर आपने 1 to 1 पढ़ी होगी वर्ड टू वर्ड तो आपको ये याद होगा, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। व्हाट इम्पैक्ट डज द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैव? तो अब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से क्या होता है? अब बिजनेस के एक्सपेंशन तो नहीं होता। इट रिस्ट्रिक्ट्स द बिजनेस टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अब बिजनेस को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर ही जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाई इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होते, एक्विजिशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिजनेस को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक। When कर्ता टेक्स हैस्टी अनबैलेंस्ड डिसीजंस व्हाट हैपेंस? हमें बताना है। बिजनेस ऑपरेशंस जो है इंप्रूव होते हैं, बिजनेस सोल्ड हो जाता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस, एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाएगी जब वो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा है? तो द बिजनेस सफर कर सकता है पुअर मैनेजमेंट की वजह से, ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है। What is the minimum number of persons required to form a partnership? अब पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो मेंबर तो चाहिए ही होते हैं, ठीक है। What is the maximum number of partners allowed in a non banking business partnership? जो नॉन बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? वो 20 हो सकते हैं, ठीक है। Which of the following is not a characteristic of a partnership agreement? Which of the following is not a characteristic of a partnership agreement? का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? तो मस्ट बी इन राइटिंग, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, हमें नोट पूछा गया है तो इट मस्ट बी अ राइट इन राइटिंग, तो आंसर ए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये रिटर्न में ही हो, ठीक है। A partnership can be formed to carry out which type of business? Any type of business, non-profit, only lawful businesses,
तो ओनली लॉफुल बिजनेसेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एनी टाइप में अनलॉफुल बिजनेस भी आ जाता है तो हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। एनी बिजनेस इंक्लूडिंग इलीगल एक्टिविटीज, तो इलीगल एक्टिविटीज तो बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर सी इज करेक्ट। इन अ पार्टनरशिप हु हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट में कौन पार्ट लेता है? एवरी पार्टनर, ठीक है। वो टाइप ऑफ लाइबिलिटी डू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप हैव, उनकी लाइबिलिटी किस टाइप की होती है? तो जितना उनका शेयर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है, पार्टनरशिप में। What does mutual agency in a partnership mean? What does mutual agency in a partnership mean? So each partner is responsible only for their own actions. Every partner is the implied agent of the other partners and the firm. Every partner is an implied agent of the other partners and the firm. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ पार्टनरशिप? हाई प्रॉफिट्स, एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। हमें ये बताना था कि कंटिन्यूटी को कौन सी अफेक्ट करती है, तो आंसर सी इज करेक्ट। अ पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड टू हैव लैक ऑफ कंटिन्यूटी बिकॉज पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? It does not generate partner profits, requires constant changes in the agreement, the firm's existence can be affected by the death, lunacy, insolvency। तो आंसर सी इज करेक्ट। किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, लूनेट हो जाता है, लूनेसी मीन्स पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर यानी कि दिवालिया हो जाता है, तो उससे फर्म के एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। What is the maximum number of partners allowed in a banking business partnership? अब बैंकिंग बिजनेस पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं? तो 10। Which type of partner takes an active part in the management? तो कौन सा पार्टनर जो है एक्टिव पार्ट लेता है? तो ये जनरल और एक्टिव पार्टनर होता है, ठीक है। Which type of partner does not take active part in the management but shares profit and loss? तो वो कौन सा होता है? डोरमेंट पार्टनर होता है, स्लीपिंग और डोरमेंट। Which type of partner participates in the business without disclosing their association with the firm to the public? अब पब्लिक को नहीं बताते कि हाँ फर्म के साथ में उनकी एसोसिएशन है, बट वो पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं? तो सीक्रेट पार्टनर होते हैं। Which type of partner only lends their name and goodwill to the firm without investing money or taking profit? तो ऐसा कौन सा पार्टनर होता है जिसको प्रॉफिट भी नहीं मिलता और जिसने कोई मनी भी इन्वेस्ट नहीं करी है, लेकिन हाँ उसने अपना नाम दिया और गुडविल दिया, तो वो कौन से पार्टनर होते हैं? नॉमिनल पार्टनर होते हैं वो। What is the liability status of a nominal partner? Unlimited liability. Who is a partner by estoppel? तो इसका आंसर है आंसर बी, अ पार्टनर हु गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर थ्रू वर्ड्स और कंडक्ट बट इज नॉट एक्चुअली पार्टनर। What type of partner is falsely declared a partner but does not deny it, becoming liable to third parties? गलती से जो है डिक्लेयर कर दिया पार्टनर, लेकिन वो डिनाई नहीं करते, तो इसीलिए वो जो है लायबल हो जाते हैं थर्ड पार्टीज को। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लीपिंग और डोरमेंट? तो जो डोरमेंट होता है उसका मतलब होता है कि निष्क्रिय है, तो एक्टिव तो नहीं हो सकता, तो ये हटा देंगे। अब सीक्रेट पार्टनर भी नहीं है, तो सीक्रेसी वाला सी पॉइंट भी हटा दो। इन्वेस्ट मनी एंड शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉस विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, तो डोरमेंट पार्टनर होता है वो, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, लेकिन शेयर प्रॉफिट को जो है बांटता है आपस में, तो आंसर बी इज करेक्ट। और जो आंसर डी था वो भी इसका आंसर नहीं था, क्योंकि ये तो नॉमिनल पार्टनर होता है। Which type of partner has unlimited liability but does not invest money or take profits? तो कौन सा पार्टनर होता है? जो नॉमिनल पार्टनर होता है, ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। Which partner's liability arises due to their conduct or words giving the impression of partnership to outsiders? तो ये partner by estoppel. Which partner's liability arises due to their conduct or words giving the impression of partnership to outsiders? A partner who manages the firm and participates in decision making known as general. Active, manages the firm, participates in decision making. Partner who shares profits and losses but does not take part in management is dormant partner. Which type of partner remains undisclosed to the public but
participates in firm's business, तो ये होता है secret partner. A partner who gives only their name and goodwill to the firm is called nominal partner. Who is considered a partner by estoppel? Person who actively participates, person who falsely claims, a person who is perceived as a partner due to their conduct or words. तो ये आंसर C is correct. What is the liability status of a partner by holding out? Unlimited liability. Who is considered a partner by estoppel? A person who actively participates, a person who falsely claims. So answer C is correct. Which type of partner does not deny their false association with the partner by holding out? Partner who does not invest money but has unlimited liability is known as nominal partner. Which partner's involvement in the business is not disclosed to the public? Secret partner. A partner who acts as an agent of the other partner is called general or active partner. Who is considered a minor in the context of a partnership? तो जो 18 साल से छोटे होते हैं उनको माइनर मानते हैं पार्टनरशिप के टर्म्स में. कैन अ माइनर बिकम अ फुल पार्टनर इन अ फर्म? तो नो, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ फुल पार्टनर. अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप? The consent of at least one by contributing a large sum of money with the mutual consent of all. तो answer C is correct. What is the liability of a minor in a partnership? तो liability क्या होती है उसकी? Limited to the extent of the capital contributed by them. Can a minor take an active part in the management? तो answer is no, cannot take active part. So बाकी के जो है हम इसके नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे.